नमस्कार। आज के इस सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय स्त्री शक्ति, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस महू मध्य प्रदेश तथा इंडियन हेरिटेज सोसाइटी द्वारा संचालित अपना ये कोर्स एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फेमिनिज्म, इस कोर्स में आज के पुष्प में मैं सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और आज का अपना विषय और अपने स्पीकर के बारे में आपको बताऊंगी। आज का अपना विषय है ट्रांसेंडिंग जेंडर इन इंडियन वे, मानव कल्याण की दृष्टि से लिंग भाव। और इस विषय हमारे सामने रखने के लिए हमारे यहाँ आए हैं साजी नारायण जी। नमस्ते साजी नारायण जी। आप भारतीय मजदूर संघ के पास्ट प्रेसिडेंट है। भारतीय मजदूर संघ तथा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सालों से आप एसोसिएट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय विचार केंद्र, तपस्या, स्वदेशी जागरण मंच, इतिहास संकलन योजना, ऐसे सारी संगठनों के साथ आप कई सालों से जुड़े हुए हैं। साजी नारायण जी was member of second national commission on labor appointed by PM Shriyut Atal Bihari Vajpayee ji. He is the author of more than 15 law books including various labor laws, law of family, court marriage and divorce, land reform, civil procedure code. आपके 250 से भी ज्यादा आर्टिकल्स तथा बुक्स अलग अलग विषयों पर आए हुए हैं। आप इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और स्टैंडिंग लेबर कमिटी के वाइस चेयरपर्सन भी है। He was delegate leading the Indian Trade Union delegation to ILO conference Geneva for several years. आप पाकिस्तान में लाहौर और कराची में पीस डेलीगेशन में होकर आए हैं। Saji Narayan ji is a lawyer by profession and was president of Trichur Bar Association of Kerala. He was resource person at National Judicial Academy in Bhopal. हमारे आज के विषय के लिए मानव कल्याण से लिंग भाव, इस विषय के लिए हमारे लिए ये वक्ता अपने साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी उनको सुनने के लिए उत्सुक होगी, तो मैं साजी नारायण जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें। आपका वक्तव्य 5 से 7 बजे तक है, लेकिन उसके पहले हम एक 6:30 बजे तक वक्तव्य सुनने के बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन इसमें लेने वाले हैं। साजी नारायण जी। आज एक सेकंड बताती हूँ। आज भारतीय स्त्री शक्ति की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक अहमदाबाद में संपन्न हो रही है। तो भारतीय स्त्री शक्ति के जो भी सदस्य इस कोर्स में हमेशा रहते हैं, वो सारे आज यहाँ से जुड़ गए हैं। धन्यवाद। साजी नारायण जी, आप आपका वक्तव्य शुरू करें। Okay, thank you. Am I audible right now? या जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। Okay. Thank you very much. So a good namaste to all, and I'm thankful to Sri Shakti and other that Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences, as well as Heritage Society, for inviting me to give a lecture on very important subject. I'm thankful to all. Now, the subject given to me is transcending gender the Indian way. Now, when we look at the public discourses that are happening in India, it's all like a fashion that leftist and Western discourses have a very great influence over all the discourses, and everything is being looked at from a Western eye. So definitely we have to develop an Indian alternate. And also most of the issues discussed in feminism and in women's liberation movement, India has got a better alternative. So
In that perspective also we have to discuss these issues. When we look at the global scenario, you will find there are three streams related to thoughts on women. One is the feminism that is developed in the Western countries. It's a offshoot of a capitalist culture. Then you have to separate women's liberation movement from it because it has got a communist or Marxian background. So feminism and women's liberation are two streams. And now we have to present the Indian women, the concept of Indian women also. So these are the three streams that are coming up. Now, when we look at the Western tradition on women, from the biblical times, there is the woman is considered as a slave of men. In the Genesis of the Old Testament, when the Eve has disobeyed the command of God, the God curses not only Eve, the entire women, with 4 sorrows. When you Genesis 3.16, 4 sorrows are: you will have severe pain, second, labor pain, 3, desire, that is submission only for husband, and 4th is the husband will एक rule सेकंड for you. डिस्टर्ब करती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। जी, जी। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करेंगे आप प्लीज। Okay, right. I have to. Okay. So they have 4 sorrows they have with. So these are all just I am referring because already elaborately you will be discussing on Western feminism. और वो ओल्ड टेस्टमेंट में ये भी बताया है कि विमेन इज ए डिस्पेंसेबल बॉन्ड, ऐसा स्वामी रंगनाथन जी ने बताया। वुमेन ये हड्डी से बनाया है, इसलिए इट इज ए डिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ बॉन्ड, फ्रॉम दैट इट इज क्रिएटेड। सो स्वामी रंगनाथन जी हैज टर्म्ड इट एज ए डिस्पेंसेबल बॉन्ड। नाउ इसके बारे में अभी रेवरेंड रिचर्ड हैरिस, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड एरिया का एंग्लिकन बिशप है, उन्होंने एक किताब लिखा है गॉड आउटसाइड द बॉक्स। इसमें उन्होंने लिखा है गॉड एज ए मैन इज ए मेल शॉविनिस्ट व्यू। इसका मतलब God is against women and God's nature is suppressing women. That is the concept of God developed in the West. Now, in many of the codes, जैसे Babylonian code होता है, Hebrew law होता है, English general law, in all these things, a woman is considered as a private property of men. This is the broadly the Western origin of suppression of women. फिर मुस्लिम जगत में भी, इस्लाम के बीच में भी कैसे महिला को देखते हैं, इसके बारे में मोरक्को के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर फातिमा मर्निसी, उन्होंने कुछ आरोप रखा है। एक तो Muslim women suffer gender discrimination, 1. Second, it is created by the male, all these sufferings. Third, hijab and parda, this is also a limitation of women. फिर restricting women from becoming head of the state, एक political head के रूप में नहीं काम कर सकते। और next is law legal status. फिर evidence act में एक विटनेस के रूप में उनका कुछ कमियां होता है। फिर प्रॉपर्टीज राइट्स, इसमें भी उनका योगदान आधा है। उसी तरह सामाजिक समरसता, ये समत्व, इसके बारे में भी उनको कुछ नुकसान होता है। इसके अलावा मोटे तौर पर इस्लाम महिला को एक स्लेव के रूप में मानते हैं।
उनका मैरिज एज वो भी कई मुस्लिम देशों में बहुत नीचे है। जैसे ईरान में 113 तक है। फिर इस्लाम में मैरिज इज बिटवीन फादर इन लॉ एंड द ब्राइड ग्रूम, यही होता है। फिर वो इस्लाम के रेडिकल ग्रुप्स, इस्लाम मेनली इट्स अगेंस्ट, दे आर अगेंस्ट एजुकेटिंग वीमेन। फिर इस्लाम इज आल्सो नोटोरियस अबाउट रेप लॉ। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए रेप विक्टिम टू कंप्लेन अगेंस्ट रेप। फिर कुछ तरीका का शादी भी होता है, मुता मैरिज, इसको अरबी मैरिज भी कहते हैं, ऐसा सुना है। फिर पुरुषों के साथ मस्जिद में उनका एंट्री नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। अभी वर्तमान लव जिहाद का मामला भी अभी आ गया। अभी तालिबान, आईएस ये सब आने के बाद बहुत मुद्दा अभी मुस्लिम विमेन के बारे में आया है। अभी जब इसलिए वेस्टर्न सोसाइटी में, इस्लाम में कैसे इनके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में मैंने एक जनरल पर्सपेक्शन आपके सम्मुख रखा है। हमारा विषय तो दूसरा है। हमारे विषय में मुख्यतः आता है महिलाओं के स्टेटस के बारे में सोचते समय दो शब्द हमारे सामने आता है। एक है सेक्स, दूसरा है जेंडर। सेक्स माने फिजिकल डिफरेंस, पुरुषों और महिलाओं के बीच में फिजिकल डिफरेंस होता है। ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, नेचुरल होता है। इसको मनुष्य को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जेंडर जो मनुष्य ने बनाता है, समाज ने बनाता है, परिवार में बनाता है, इसलिए इसको चेंज करना है, ये सोच। सो देर आर सम थिंग्स विच इज चेंजेबल, देर आर सर्टन थिंग्स विच आर नॉट चेंजेबल। सो इसको नॉट चेंजेबल इसको सेक्स बोलता है, दैट इज फिजिकल डिफरेंस। और चेंजेबल इज सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, इसको जेंडर बोलते हैं। तो पूरे ये फेमिनिज्म, विमेन्स लिबरेशन, इसमें सबसे बड़ा चर्चा है जेंडर को कैसे एड्रेस कर सकते और अभी तक इसको कैसे हैंडल एड्रेस कर सकते, इसके बारे में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग अभी तक वेस्टर्न थॉट में आया नहीं। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया है जेंडर के बारे में। जैसे साइमन दी बुआर, उन्होंने बताया वन इज नॉट बोर्न एज ए वुमन बट शी रादर बिकम्स ए वुमन। देन केट मिलेट, इनका बहुत प्रसिद्ध किताब है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने लिखा है थ्रू जेंडर द अथॉरिटी ऑफ मेन इज एस्टैब्लिश्ड इन सेक्सुअल पॉलिटिक्स। उसी तरह एंथ्रोपोलॉजिस्ट राइटर गेल रूबिन, उन्होंने बताया है कि जानवर के बीच में मेल एंड फीमेल होता है, वहां मैन एंड वुमन नहीं होता है। केवल मैन एंड वुमन केवल मनुष्य के बीच में होता है, इसलिए जानवरों के बीच में वो नहीं है। और ये जेंडर को कैसे बनाता है, इसके बारे में वेस्टर्न स्टडीज बोलते हैं जनरली एक गर्ल इज ट्रेन्ड इन फैमिली ऑफ बिकमिंग ए वुमन। जब एक बच्चा पैदा होता है, वो उसको जेंडर के बारे में उनके कोई आइडिया नहीं, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को, ये बॉयज को, आप बॉय है इसलिए आप ऐसा ऐसा कर सकते, ऐसा एक जानकारी उनको देते हैं। बच्चियों को, दो गर्ल्स को, आप यू आर ए गर्ल सो यू हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन दीज थिंग्स, कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ऐसा बोल के धीरे धीरे दोनों के बीच में गैप बढ़ता है। और वन इज ट्रेन्ड एज ए बॉय, अनदर इज ट्रेन्ड एज ए गर्ल। दिस इज हाउ जेंडर इज डेवलप्ड। इसी तरह एक मैन एंड वुमन, ऐसा एक पर्सनालिटी दोनों के बीच में सेटल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग इन फैमिली। इसलिए एक इनइक्वालिटी परिवार में, समाज में, सब जगह पैदा होता है। अभी फेमिनिस्ट इसको, इस विचार के लिए जेंडर का कंस्ट्रक्ट के बारे में फ्रॉइड का कुछ थियरीज को यूज किया है। फ्रॉइड्स का 3 थियरी को उन्होंने
यूज किया है। एक तो अनकॉन्शियस माइंड के बारे में उन्होंने जो पढ़ा, जो स्टडीज रखा है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस माइंड में ये जेंडर सेटल हो जाता है धीरे धीरे। दूसरा एंड्रोगैनी प्रिंसिपल। एंड्रोगैनी मान के अर्थ ऐसा है, बच्चे पैदा होते समय उनको दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेकिन बाद में वो एंड्रोगैनी दोनों सेपरेट हो जाता है। और तीसरा उनका थियरी है चाइल्ड सेक्सुअलिटी के बारे में, जो स्टडीज है वो भी उसमें जोड़ दिया है। उसी तरह फ्रॉइड्स का मेनली एंड्रोगैनी थियरी का यूज करके कैसे मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को सेपरेट होता है, वो उसका स्टडीज आया है। इसलिए कैसे जेंडर को पार कर सकते, ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने क्या क्या है, उन्होंने उनका जो अप्रोच मोस्टली इट वाज ए रिएक्शनरी और सुपरफिशियल हुआ है और आर्टिफिशियल भी होता है। वो उन्होंने कैसे फिजिकल डिफरेंस को निकाल सकते, इसके लिए कई तरफ की प्रयास उन्होंने कर दिया, जैसे ड्रेस लाइक ए मैन ये आया है, और पुरुष को एंटी मेल ऐसा एक भाव पैदा होना चाहिए, जीवन में पुरुष को निकालना, अवॉइडिंग मेन इन लाइफ, ऐसा सब हुआ है। उसी तरह सैंड्रा बेम ऐसा एक फेमिनिस्ट ने बताया, यू हैव टू डेवलप ए एंड्रोगैनी पर्सनालिटी, दिस बोरोइंग फ्रॉम फ्रॉइड्स एंड्रोगैनी दैट बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना है। तो ऐसा कुछ सुझाव इस जेंडर को ओवरकम करने के लिए उन्होंने सोचा है। और जेंडर पैदा होता है परिवार में माता पिता लोग इसको जेंडर धीरे धीरे डेवलप करता है, इसलिए परिवार को वो शत्रु मानते हैं। इसलिए बेटी फ्राइडन उनका पहला किताब फेमिनिन मिस्टिक दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए टेक्स्ट बुक ऑफ फेमिनिज्म, तो उसमें इसमें लिखा था, उसमें उन्होंने बताया द वुमन इज ट्रैप्ड इन हाउस एंड किचन, इसलिए वहां से थोड़ा लिबरेशन होना चाहिए। उसी तरह फैमिली के अंदर मोल्डिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होता है, और ट्रेनिंग इन हाउस होल्ड ड्यूटीज महिलाओं को थोड़ा वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण देते हैं। उसके लिए फ्लोर क्लीनिंग, किचन वर्क, क्लीनिंग द हाउस, चाइल्ड केयर, कुकिंग, वॉशिंग प्लेट्स, ये सारा काम धीरे धीरे बच्चों ये गर्ल्स को सिखाते हैं। इसलिए जर्मन ग्रियर ऐसा एक फेमिनिस्ट है, उन्होंने उनकी एक प्रसिद्ध किताब है फीमेल यूनक, उस किताब में उन्होंने बताया रिवोल्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ पैट्रियार्कल फैमिली, परिवार सिस्टम के खिलाफ एक रिवोल्ट करना है, ऐसा उन्होंने बताया है। उसी तरह फिलामिथ फायरस्टोन ऐसा एक फेमिनिस्ट है, उन्होंने उनका ही एक प्रसिद्ध किताब है द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, उनमें भी उन्होंने बताया बायोलॉजिकल फैमिली सिस्टम को रिजेक्ट करना है, इसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यूज करना, कैसे यूज करना है, ये सारा उसमें लिखा है। इसी तरह कई सॉल्यूशंस उन्होंने लिखा है, लेकिन फेमिनिस्ट के बीच में सॉल्यूशन के बारे में कैसे जेंडर पार कर सकते, इसके बारे में एक यूनिफॉर्मिटी अभी तक हुआ नहीं। अलग अलग फेमिनिस्ट अपना तरीका से अलग अलग समाधान ये सब मिलता है। लेकिन फेमिनिज्म में एक अच्छा चीज हुआ है, क्या है, महिलाओं के जुड़े हुए सारी इश्यूज को उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। एक भी इश्यू को समाधान उन्होंने निकाला नहीं, लेकिन फिर भी उसको सबको आइडेंटिफाई किया था। एक तो मैंने जो बताया मेकिंग ऑफ जेंडर, दूसरा है पैट्रियार्कल सिस्टम, और इसे मैरिज सिस्टम के बारे में और कैसे इसको रिजेक्ट करना है। इसलिए उन्होंने स्टे टुगेदर, ऐसा कुछ बिना मैरिज कैसे रह सकते, ये सारा सोचा। उन्होंने मदरहुड के बारे में सोचा और मदरहुड को भी रिजेक्ट करना है, प्रेगनेंसी को रिजेक्ट करना है, ये सारा उन्होंने बताया। फिर फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन
इसको रिजेक्ट करना, ये सोच भी वहां हुआ है। लेकिन फैमिली को रिजेक्ट करने के बाद ये फेमिनिस्ट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। While rejecting the family, there is psychological breakdown, especially among the children. Broken family का इसलिए crimes are increasing, violence is increasing, और सिंगल पेरेंट सिस्टम से भी बहुत सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों को होता है, टेंशन होता है, ये सारा इसलिए हुआ है। डिप्रेशन ये सारा वेस्टर्न सोसाइटी में ज्यादा है। भारत की समाज में जब तुलना करते तो वेस्टर्न सोसाइटी में ये सारा बहुत ज्यादा है। फिर क्या, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पूरे विश्व में अभी देखते समय हमको अजीब लगता है, भारत में महिलाओं का प्रॉपर्टी राइट्स परसेंटेजेस ज्यादा, लेकिन ग्लोबली इट्स ओनली 1%. 1% of the total global property is only that much is owned by women. So you can understand the gravity in the Western society. इसलिए उन्होंने बताया इन सब चीजों से जरा महिलाओं को लिबरेट करना, यही है उनका। फिर उन्होंने एक और चीज सोचा है, विमेन आर बीइंग हैरास्ड, सप्रेस्ड बाय 3-4 चीज। एक तो प्रकृति ने इसको हरास करते हैं, क्योंकि फिजिकल डिफरेंस सेक्स ये सारा हुआ है, इसके कारण पुरुष ने उनको हरास करते हैं, परिवार उसको हरास करते हैं, समाज भी उनको हरास करते हैं। जब वो काम के लिए जाते हैं वर्क प्लेस में भी हरासमेंट होता है। इसलिए ये सारा विषय इन सबको कैसे रिजेक्ट कर सकते, ऐसे इन सब से अलग करके कैसे महिला अपना जीवन बिता सकते, इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस। ये दिस आर ऑल आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स, तो ऐसा होता है। सो लिबरेशन फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, दैट इज दिस थिंग। अभी इसके परिणाम क्या हुआ, ये सारा कंफ्यूजन पैदा होने के कारण बेटी फ्रीडन जो फेमिनिन मिस्टिक वो 1960 में लिखा था, 20 साल के बाद उन्होंने एक दूसरा किताब लिखा था, वो है द सेकंड स्टेज। उनमें उनका एकदम परिवर्तन हुआ। उनका कई चीज भारत की परिवार व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी मिला, उससे थोड़ा प्रभावित हुआ था। इसलिए द सेकंड स्टेज में उन्होंने एक बुनियादी सवाल उठाया, विदाउट मदरहुड कैन आई रियली बी ए वुमन? दैट इज द क्वेश्चन शी रेजेस। एक मादा नहीं बन के कैसे मेरे को एक महिला हो सकते, ऐसा उन्होंने बताया। उसी तरह पुरुष और महिला दोनों एक साथ ही रहना है, एक साथ जाना है। इसलिए ऐसा एक इक्वालिटी के बारे में एक भारतीय जो संस्कृत का कंसेप्ट है उन्होंने आगे रखा। और तीसरा उन्होंने बताया, वन शुड नॉट ट्राई टू लिबरेट फ्रॉम द अदर। पुरुष महिला से लिबरेट करना ऐसा सोचना नहीं, महिला पुरुषों से लिबरेट करना ये भी गलत सोच है, ऐसा उन्होंने बताया। और चौथा उन्होंने पॉइंट लिखा है, फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ये भी उन्होंने बताया। ऐसा एक, इसका मतलब क्या है, अटर कंफ्यूजन में फेमिनिस्ट ने एक नया चीज जो फेमिनिज्म का टेक्स्ट बुक जैसे लिखा था, उन्होंने ही एक नया चीज, एक एकदम चेंज्ड व्यू पूरे विश्व के सामने रखा था। इसके बारे में सेकंड स्टेज के बारे में बहुत डिस्कशन अमेरिका या बाकी वेस्टर्न सोसाइटी में हुआ था। अभी हम मोटे तौर पर फेमिनिज्म के बारे में ये सारा मुद्दा हम अभी हमारे वर्तमान भारतीय स्त्री के बारे में चर्चा करते समय ये सारा आता है। अभी विमेन्स लिबरेशन is developed mostly in the background of Marxian discourses. विमेन्स लिबरेशन में मेनली मोटे तौर पर दो स्ट्रीम्स होता है, एक तो रैडिकल फेमिनिज्म, दूसरा लिबरल फेमिनिज्म। और कार्ल मार्क्स महिलाओं के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, ज्यादा लिखा भी नहीं। उन्होंने महिलाओं का स्थिति क्या है इसके बारे में ज्यादा ओनली कैशुअल रेफरेंस उनके साथ से होता है। उन्होंने ये बताया कि जब सोशलिज्म आता है तो महिलाओं का सारी मामला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने
एक बहुत बड़ा मिस्टेक कमिट किया था। उन्होंने वहां का कई समाज के बारे में स्टडी करके, यूरोपियन हिस्ट्री स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन कम्युनिस्ट थिंकिंग, जब वो किया था, they made a controversial statement there. They referred to some tribal behavioral things and social practices and said wife sharing is an ideal thing that should be in communist society. This has become very controversial. Wife has to be shared with each other. That is there. So he also praised capitalism, and US also they said. Along with the Marx, Engels also made some blunder statements. उन्होंने बताया एक वर्कर फैमिली में देयर इज नो अडल्ट्री, वहां प्रोस्टिट्यूशन भी नहीं है, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया था। और इन दोनों का सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं को सारी समस्याओं का कारण इकोनॉमिक है, आर्थिक कारण से होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। और फिर जब रशिया अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया में कम्युनिस्ट सरकार आया था, उस समय फैमिली डिपार्टमेंट, उसके माने फैमिली मिनिस्ट्री के हेड के रूप में एक महिला उनको रखा था। उसकी नाम है अलेक्सेंड्रा कोलंताई। कोलंताई का सबसे बड़ा टास्क यह था रशिया में, यूएसएसआर में पूरा परिवार सिस्टम को समाप्त करना, उसके स्थान पर कम्यून सिस्टम लाना है। इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, आर्टिफिशियली दबाव में सब कर दिया। अंत में क्या है, वहां का साइकोलॉजिस्ट लोग ने बताया विदाउट फैमिली सिस्टम यू कैन नॉट ब्रिंग अप गुड पर्सनालिटी इन द चिल्ड्रन, सो दे अपोज्ड इट एंड फाइनली देयर वाज ए clash between Kollontai and Lenin. Lenin wanted to revert back to family system. There was some conflict, and finally Lenin removed Alexandra Kollontai. So the shifting from transit from this family system to commune, that failed in Russia. And finally, when the communism, the fall of communism that took place from Gorbachev's glasnost and perestroika, one main mudda was Gorbachev wanted to reinstate family system. That was one main thing. उसी तरह ये सब हुआ था। अभी कम्युनिस्टों के बीच में भी एक बहुत बड़ा रिफ्ट हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, विमेन्स लिबरेशन के लोग चाहते थे दे शुड बी लिबरेटेड फ्रॉम पुरुष, तो जेंडर स्ट्रगल उन्होंने प्रपोज कर दिया। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के पुरुष नेताओं ने बताया कम्युनिज्म में केवल क्लास डिफरेंस हो सकते, उसके बीच में दूसरा एक डिफरेंस नहीं लाना है, इसलिए गलत है। इसलिए महिलाओं के मूवमेंट, सारी अभियान केवल क्लास कॉन्फ्लिक्ट के लिए काम करना, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट के लिए काम नहीं करना। तो द नो लिबरेशन सिस्टम शुड वर्क इन कम्युनिस्ट पार्टी। भारत के कम्युनिस्टों के बीच में भी ये मुद्दा आया था और नेता जैसे EMS नंबूरीपाट जैसे लोगों को एकदम स्ट्रांगली बोलना पड़ा, नो जेंडर और लिबरेशन मूवमेंट इनसाइड कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा बोलना पड़ा। इसके कारण क्या हुआ, जिस विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गया, वो एंटायरली इंडिपेंडेंट से काम करना शुरू हो गया, इसलिए वहां भी उनका फेलियर हो चुका है। इसके अलावा ब्लैक फेमिनिज्म, क्लास फेमिनिज्म, ऐसा बहुत सारा, अफ्रीकन फेमिनिज्म, थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म, ऐसा कई तरफ की फेमिनिज्म होता है विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन रेस, कलर, क्रीड, क्लास एक्सेट्रा। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर देयर वाज मेनी थिंग्स एंड फेमिनिस्ट लाइक एंजेला डेविस, सच पीपल वर बिहाइंड दैट। लेकिन उसमें भी वेस्टर्न फेमिनिस्ट ने बताया लिबरेशन शुड बी between man and women, not based on any race, color or creed. That is also against the feminist movement. That will create split in the feminist movement, ऐसा उन्होंने बताया। इसलिए कुल मिलाकर ये भी एक कुछ स्ट्रीम्स के रूप में हम पढ़ना में, हर एक चीज के बारे में गहराई में थोड़ा
पढ़ना है। मेरा विषय तो अभी भारतीय सिस्टम में इसके बारे में क्या क्या सोचा है। अभी भारत का एक जीवन मूल्य, एक समाज मूल्य, ये सब पता है। वी कॉल इट एस चिर पुरातन एंड नित्य नूतन। इट्स अ वेरी एंशिएंट सिस्टम. Even then, it is always changing, it's always transforming, it's always reforming. So even for the current scenario, it is squarely applicable. So जो values ऋग्वेद के समय हुआ था, those values are still continuing in the modern 21st century. So this is the specialty of Indian thought. And in India also, there were many discussions on this feminism, women's liberation, etc. There also many have pointed out that Western theoretical models that will not apply to India's situation, because India's gender division, gender concept, etc. are totally different. So that way also it is there. So in Indian thought, there are certain issues, there are certain specialities given to women. वो क्या है? एक तो दोनों के बीच में समत्व, इक्वालिटी, भेदभाव नहीं है, ये वन स्पेशलिटी. दूसरा स्पेशलिटी क्या है? महिलाओं को रेस्पेक्ट करना, इट्स ए रिलीजियस ड्यूटी. महिलाओं को पूजा भी करने का एक ट्रेडिशन भारत में होता है. तीसरा क्या है? महिलाओं को एजुकेशन करना है, एजुकेशन देना कंपल्सरी. ये हमारा पुराना सिस्टम होता है. चौथा है, केवल भारतीय सिस्टम में होता है एक अजीब चीज है, वो स्वयंवरा राइट है. महिलाओं को, केवल महिलाओं को अपना वर को स्वीकार करने का अधिकार है. इसलिए वर, ये शब्द का मतलब क्या है? दोस्त आर बीन सिलेक्टेड, ऐसा शब्द होता है. उसी तरह पॉलिटिकल राइट, they can become head of the state, they can lead political, they can become political leaders. All these are there are several examples. महिलाओं को फ्रीडम दिया है भारत में. महिलाओं को लीगल सिक्योरिटी वो भी ज्यादा है. बहुत सारा धर्मशास्त्रों में महिलाओं को सिक्योरिटी देने के लिए बहुत सारा प्रावधान है. फिर दूसरा एक राइट है, राइट टू स्त्रीधना. आवर कंसेप्ट ऑफ स्त्रीधना इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ डावरी. डावरी और स्त्रीधना दोनों दो अलग अलग कंसेप्ट है. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया, डावरी इज नॉट स्त्रीधना, स्त्रीधना इज नॉट डावरी. उसी तरह महिलाओं को शक्ति का एक सिंबल के रूप में मानता है, ये भी एक चीज है. फिर परिवार के अंदर महिलाओं को रानी जैसे मानते हैं. फिर मातृत्व, मदरहुड को बहुत सबसे ग्रेट ऐसा भी भारत में मानते हैं. फिर जॉब में, सारी कामों में इक्वल अपॉर्चुनिटी वो भी भारत में हुआ थे. फिर कुछ कानून में राइट टू अडॉप्ट एक्सेट्रा केवल भारत में महिलाओं को दिया है. अभी एक बार हम सबसे पुराना लिटरेचर पूरे विश्व में ऋग्वेद है. ऋग्वेद से होकर अभी तक एक ही लाइन पर ये महिलाओं को देखा है. वहां स्वयंवरा के बारे में दो, राइट टू स्वयंवरा, वो ऋग्वेद में शुरू होता है. ऋग्वेद में पहली बार राइट टू स्वयंवरा इट वॉज डिबेटेड. एक बार विमदा ऐसा एक राजा था, वो एक बहुत छोटा राजा था. उन्होंने शुंदु ऐसा एक महिलाओं से प्यार करते थे, उनके स्वयंवर में गया था. उस समय विमदा के साथ बहुत पावरफुल कुछ राजा भी आया था. तो शुंदु ने विमदा को अपना पति के रूप में उन्होंने स्वयंवर करने के लिए अपना इच्छा प्रकट किया. लेकिन बाकी पावरफुल राजा ने बताया हम इसको अनुमति नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने, तो झगड़ा सब हुआ. उस समय ऋग्वेद कालघट में सबसे पावरफुल देवास थे, अश्विनी देवास, दो देवास है. उन्होंने सडनली वहां आके ये स्वयंवरा राइट एस्टैब्लिश करके शुंदु और विमदा का शादी करवाया.
ये एक इंसिडेंट हम वहां मिलता है। दूसरा इसमें शादी के बारे में एक रथविधि, ऐसा एक राजा था, उनकी बेटी अपना सर्वेंट घर के पैलेस के एक सर्वेंट से प्यार किया था, शादी करना चाहते थे। तो सर्वेंट का नाम है स्वस्वान, ऐसा आदमी को शादी करना चाहते थे, लेकिन माता पिता जी इसको ऑब्जेक्ट कर दिया। लेकिन उस समय के सिस्टम के अनुसार महिलाओं का स्वयंवर राइट के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए माता जी ने एक कंडीशन बताया, आप एक पोएट ऋषि बने तो आपको शादी में देते हैं। तो उन्होंने तपस्या करके एक पोएट बन गया और ऋषि भी बन गया, इसलिए ऋषि स्वस्वान ऐसा अभी माना जाता है। उसके बाद उन्होंने शादी कर दिया। ये इंसिडेंट भी हम वहां मिलता है। उसी तरह ये विडो मैरिज के बारे में, जो विधवा बनता है उनका मैरिज के बारे में भी एकदम उसका परमिशन, वहां भी हम 10वीं मंडल में ऋग्वेद का वहां भी एक इंसिडेंट मिलता है। एक हस्बैंड मर गया तो उसके शव शरीर के सामने वो पत्नी रोते थे। उस समय जो रीमैरिज किया है ऐसा 2-3 महिला आके उनको एडवाइस करते हैं, आप रोना मत, आपके इंतजार करके बहुत लोग शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए आप थोड़ा उठ जाइए, यही बोल के उनको थोड़ा शांत करने की प्रयास कर रहे हैं। ये इंसिडेंट भी वहां होता है। लेकिन ये इस मुद्दे पर सायण जो ऋग्वेद का इंटरप्रिटेशन किया था, उन्होंने कुछ गलत तरीका से उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया, लेकिन दयानंद सरस्वती ने इसको थोड़ा ये मिस्टेक को करेक्ट कर दिया था। उसी तरह ऐसा कई होता है। फिर शादी में परिवार में महिलाओं का भूमिका के बारे में वहां में एक प्रसिद्ध सूक्त होता है, उसको विवाह सूक्त बोलते हैं। कई ब्राह्मण के विवाह में ये सूक्त हम परिचित है। उसमें बोलता है, एक सूक्त में बोलता है, आप परिवार के अंदर एक साम्राज्य बनना है, यू हैव टू बिकम एन एम्परस इन फैमिली, साम्राज्य भवा, ऐसा एक सूक्त होता है। उसमें आप फादर इल्ला के सामने एक तो साम्राज्य होना चाहिए, मदर इल्ला के सामने होना चाहिए, हस्बैंड सिस्टर्स के सामने होना चाहिए, ब्रदर्स के सामने, ये 4 लोगों के बीच में आप एक साम्राज्य होना चाहिए, ऐसा एक इंसिडेंट वहां है। मेरा भी एक अनुभव है, जब मैं केरल से हूँ इसलिए नॉर्थ में कैसे बातचीत करने में ज्यादा परिचित नहीं, लेकिन अभी एक हमारे एक परिवार के हमारे एक ऑर्गेनाइजेशनल परिवार के एक बहुत आदमी, उन्होंने अपने बहू के बारे में बताया, बहू रानी, मेरी बहू रानी मेरी माता जी के साथ है, ऐसा बताया। तो बहू रानी ऐसा एक शब्द अभी भी हमारा समाज में प्रचलित है। उसका सोर्स एक्चुअली इट इज फ्रॉम ऋग्वेदिक, दिस साम्राज्य वो सूक्त से होता है। उसी तरह परिवार में जब बहू आता है उस समय उसको रिसेप्शन में ये सब साम्राज्य भवा ऐसा मंत्र बताते हैं। वहां ब्राइड कुछ दिन रहने के बाद ब्राइड का एक बोलना, वो भी एक ऋग्वेद का मंत्र में आता है। उन्होंने बोलते हैं अहम केतुर, ऐसा एक मंत्र शुरू होता है। अहम केतुर मीन्स मैं इस परिवार का एक लीडर बन गया है। केतु मीन्स फ्लैग, तो परिवार का फ्लैग में हो गया, माने लीडर ऐसा बन गया है, ऐसा एक प्रसिद्ध एक ये है, ये भी होता है। उसी तरह इंद्राणी और इंद्र, ये दोनों के बीच में एक संवाद होता है। वहां इंद्र अपनी पत्नी के बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं, सेम वे इंद्राणी भी अपने पति के बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसा करके ही अपना संवाद शुरू होता है। यह भी एक मॉडल होता है। उसी तरह ऋग्वेद में बताया है, जिस परिवार में पति और पत्नी दोनों के बीच में इक्वली समझते हैं,
वो परिवार को देवताओं के समान सोचना है। यही है, दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल टू देवता देवास। तो जहां परिवार में दोनों के बीच में इक्वालिटी होता है, उनको देवता का स्टेटस ऋग्वेद ने दिया है। और एक घर माने क्या है, ये भी डिस्कस करते हैं। वहां ऋग्वेद बताता है जायेद अस्तम माने हाउस मीन्स वाइफ, यही बोलते हैं, ऐसा भी उसमें होता है। और सबसे पहले जॉइंट फैमिली शुरू हुआ है वशिष्ठ से होकर। वशिष्ठ का सबसे बड़ा जॉइंट फैमिली हम ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद श्वेतकेतु ऐसा एक ऋषि थे, उन्होंने एकपत्नी व्रत और पातिव्रत्य इन दोनों के बारे में कुछ रूल्स बनाया। केवल पातिव्रत्य के बारे में उन्होंने रूल्स बताया नहीं, उन्होंने एकपत्नी व्रत भी होना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या रूल्स होना चाहिए उन्होंने बताया। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पुराणों में, इतिहासों में, सब जगह पतिव्रताओं के बारे में बहुत सारा ये कहानियां हम सुनते हैं। इसके बारे में मैं एलाबरेट नहीं करता हूं, क्योंकि आप सब लोग इसके बारे में परिचित है। उसी तरह फैमिली काउंसलिंग ये भी ऋग्वेद से शुरू होता है। एक बार ऋषि बृहस्पति और उनकी वाइफ जुहू के बीच में झगड़ा हुआ, तो उसको ज्वाइन करने के लिए एक फैमिली काउंसलिंग होता है। उसी तरह ऋग्वेद बताता है पति और पत्नी के बीच में जो झगड़ा होता है, इसका कारण एक कृत्य, ऐसा एक असुर है, उसके कारण होता है। इसलिए उसको दूर करने का एक मंत्र भी ऋग्वेद में होता है, ऐसा भी है। फिर वहां भी कई तरफ की प्रॉब्लम्स ऋग्वेद में समाज में होता है, उसके कैसे सुधार कर सकते, इसके बारे में डिस्कशन होता है। रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म्स, परिवार फॉर्म, इसके बारे में यमा यमी संवाद ऐसा एक सूक्त होता है ऋग्वेद में, यमा यमी संवाद। यमा के सिस्टर है यमी, तो बहन यमा के सम्मुख एक निवेदन करते हैं, क्या है, आप मेरे को शादी करना है। तो यम ने बताया ऐसा ये प्रैक्टिस ठीक नहीं। तो यमी एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। बहुत पहले ऐसा कई तरह के एग्जाम है, उन्होंने प्रजापति से होकर कई लोग अपने बहन को शादी किया है, इसलिए आप भी शादी करना है। तो यम वहां का ऋग्वेद का एक लॉ मेकर है, ऋषि यम। तो उन्होंने बताया अभी से होकर कोई भी सिस्टर भाई को शादी नहीं करना, ऐसा रूल्स उन्होंने उस समय बनाया है। तो पहले जो हुआ है उसके रिफॉर्म्स, वो भी हम वहां होता है। वहां ओल्ड एंड न्यू लॉ के बारे में बहुत डिस्कशन उसमें होता है। उसी तरह यज्ञ करने का अधिकार, ये भी महिलाओं को थे। विश्वावरे के बारे में बोलते हैं, वो यज्ञ का मंत्र बता के वो याग के लिए जाते हैं, ऐसा एक मंत्र इसमें है। ममदा ऐसा एक महिला ऋषि है, वो भी ये यज्ञ में जो मंत्रास होता है उसको जरा प्यूरिफाई करने का प्रयास उन्होंने किया है। तो केवल यज्ञ करना है, यज्ञ के मंत्रों को भी थोड़ा परिवर्तन करने में महिलाओं का योगदान, ये ममदा का इसमें आता है। ममदा तो ऋग्वेद का बहुत प्रसिद्ध ऋषि है, दीर्घतमस, उनकी माता है। उसी तरह जाह्नवी ऐसा एक ऋषि है, वो यागा करते हैं। उस यज्ञ में अश्विनी देवास वो चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित थे। उसी तरह ऋषि वाक अभ्रणी वो बोलते हैं पूरे यज्ञ करने वाले लोगों में मैं हूं नंबर 1, यही वो बताता है। उसी तरह एक महिला ऋषि है जो 24 आवर्स 24 घंटा याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनकी नाम है गोषा। ऐसा कई महिलाओं के बारे में ऋग्वेद में होते जो केवल याग नहीं करते हैं, लेकिन बाकी यज्ञ करने वाले लोगों से भी जो आगे है। फिर इक्वालिटी, महिला और पुरुष के बीच में इक्वालिटी होना चाहिए।
ये भारतीय संस्कृति का, भारतीय विचार का एक बुनियादी बात है। वो कहाँ से शुरू हो गया? ऋग्वेद में 10वीं मंडल में ये बताया है। भगवान अपने स्वयं को डिवाइड करके एक हिस्सा पुरुष हो गया, एक हिस्सा महिला हो गया, इसलिए इक्वल डिविजन हुआ है, इसलिए इक्वल स्टेटस भी दोनों को देना है। वो ऋग्वेद से होकर होता है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद में एक ये मॉडल उन्होंने दिया है, स्प्लिट पी मॉडल। ये होता है, पी को क्या हिंदी में बोलते हैं? पी 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 ए मटर, मटर मटर बोलते हैं। तो एक मटर को जैसे दो टुकड़ा कर सकते, उसी तरह भगवान ने अपना प्रजापति स्वयं दो होके पुरुष और स्त्री हो गया है। ऐसा एक ये मटर का उदाहरण के रूप में होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड स्प्लिट पी सिमिली, ऐसा बोलते हैं। उसी तरह प्रजापति विष्णु पुराण में भगवान के बारे, विष्णु के बारे में बोलते हैं। देवी भागवत में देवी स्वयं दो रूप हो गया, वो एक पुरुष और महिला हो गया। और कालिदास भी अपने इसमें बहुत सारे कुमार संभव में से इसमें भी ऐसा लिखा है। और इक्वालिटी भारतीय स्पिरिचुअल साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए समदर्शी होना चाहिए। ऋषि माने एक स्पिरिचुअली एलिवेटेड व्यक्ति हमेशा समदर्शी होना चाहिए। भगवद गीता में बहुत सारे बताया समदर्शी ने ऐसा बताया है। उसी तरह विमेन एंड मेन आर टू इक्वल पार्ट्स ऑफ गॉड, इसलिए जहां परिवार में इक्वली पुरुष और स्त्री के बीच में इक्वल भाव होता है, वहां भगवान की उपस्थिति होता है। ऐसा भी हमारे संस्कृत लिटरेचर में कई जगह बताया है। इसलिए यूनिटी ऑफ वुमेन एंड मेन ये हमारे इसमें बहुत आता है। उसी तरह ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी इज आल्सो हमारा भारतीय चिंता के एक हिस्सा है। परस्परम भावयन्ता भगवद गीता में होता है। म्यूचुअल एक तरफ की इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लीमेंटैरिटी, वो भी पुरुषों और महिलाओं के बीच में होना चाहिए। इसके लिए एक तरफ की धार्मिक और कल्चरल ट्रेनिंग हमारे भारत की समाज में, परिवार में हमेशा होता है। इसलिए यहाँ इक्वालिटी का मामला ज्यादा डिस्कशन में नहीं आया है, क्योंकि इक्वली मानते हैं दोनों को दो भूमिका परिवार में निभाना है, ऐसा होता है। उसी में समाज में भी ये भावना के बारे में बहुत उदाहरण मिलता है। जैसे ये कोरोनेशन ऑफ किंग्स, एम्बरेस जब होता है, उसी उनके सिंहासन में अपनी पत्नी को भी बिठाना है। लेकिन ये इसमें एक अजीब बात ऐसा है, पूरे विश्व के इतिहास में कहीं भी लिटरेचर में नहीं हम देख सकते। जब एक महिला चक्रवर्ती बनते हैं, एम्ब्रस साम्राज्य बनते हैं, उस समय अपना पति को सामने बिठाया है। ये भी हुआ है हमारा ललितोपाख्यानम, ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध ये होता है। ललितोपाख्यान वो ब्रह्मांड पुराण का एक हिस्सा है, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रह्मांड पुराणम, ललितोपाख्यान वो प्रसिद्ध है। उसमें ललिता चक्रवर्ती की कहानी है। ललिता चक्रवर्ती पूरे विश्व का त्रैलोक्य चक्रवर्ती बोलते हैं, तीनों जगत का चक्रवर्ती नहीं थे। तो उनका सेनापति भी महिला है, सैन्य पूरा महिला है, मंत्री भी महिला है, सब लोग महिला थे। ऐसा उनका समेत ललिता माने पार्वती है, इसलिए ललिता चक्रवर्ती के पति शिव, भगवान शिव थे। इसलिए ललिता चक्रवर्ती का कोरोनेशन का वो सेरेमनी के बारे में उसका विस्तारित बताया है। उसी समय भगवान शिव पति के रूप में अपने साथ बिठाकर उसका ये सारा सेरेमनी किया था। ये भी उदाहरण हमको मिलता है। उसी तरह बृहस्पति, अभी देख लीजिए, होम वर्क इज गिवन टू विमेन, ये ग्लोबल सिचुएशन है। लेकिन बृहस्पति इसको विरोध करते हैं। ऋषि बृहस्पति बताते हैं किचन ड्यूटीज भी
पति और पत्नी दोनों एक साथ करना है। उनका है एक पागेन वसदम, एक ही किचन, एक ही तरफ वो ये किचन के सारे बना के दे शुड लिव टूगेदर। दैट इज दैट, पत्नी और पति पत्नी के बारे में उन्होंने बताया है। एक पागेन वसदम, शेयर किचन ड्यूटीज आल्सो। उसी तरह को एजुकेशन, वो भी एक बहुत मुद्दा है। कई जगह इस्लाम में जब तालिबान आया था, को एजुकेशन को उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, ये सारा मामला है। लेकिन हमारे यहाँ भी को एजुकेशन के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ है। भूदी एक प्रसिद्ध नाटककार है, उनका एक मालती माधव एक ये है। वहां में एक प्रॉब्लम होता है। अभी वर्तमान में हम डिस्कस किया है मैरिटल रेप के बारे में, कानून भी बनना है, या दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी है मैरिटल रेप के बारे में। मालती माधव में एक इसमें मैरिटल रेप के बारे में एक महिलाओं के असेंबली में डिस्कशन होता है। तो उनको क्या होता है, इसके कारण दो कारण वो बताते हैं। एक तो गर्ल्स एजुकेशन में कुछ कमियां हुआ है, उसको थोड़ा ठीक करना है। दूसरा, को एजुकेशन भी होना चाहिए। ये दो होते तो मैरिटल रेप की समस्या ज्यादा समाज में नहीं आएंगे। ऐसा एक डिस्कशन महिलाओं के बीच में होता है। नॉर्मली हमारे साहित्य में आम जनता प्राकृत भाषा बोलते हैं, लेकिन जब कुछ समाज के रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग चर्चा करते हैं, उस समय इमीडिएटली इट इज शिफ्टेड टू संस्कृत। तो उसमें भी जब समाधान के रूप में चर्चा करते हैं वो संस्कृत में, बाकी सब प्राकृत भाषा में होता है। ये मालती माधवम ऐसा कृति में होता है। उसी तरह हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर में भी दोनों का बीच में बताता है। जैसे आदि शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य के प्रसिद्ध एक कृति है सौंदर्य लहरी। उसका पहला श्लोक, उसमें शिव शक्ति संयुक्ता ऐसा शुरू होके एक पहला श्लोक होता है। उसमें बताते हैं शिव को शक्ति के बिना इवन उड़ नहीं सकते, ही कैन नॉट इवन स्टैंड अप, ऐसा बताया है। उसी तरह तंत्र शास्त्र में शिव और शक्ति ये दोनों को एक ही तरफ माना जाता है, मैन वुमन कंटिन्यूम के रूप में, ऐसा एक सिद्धांत वहां मिलता है। श्री चक्र हम कई जगह देखा होगा, वो श्री चक्र वो भी पुरुष और स्त्री का, शिव और शक्ति का, उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा होता है। और सांख्य फिलॉसफी में प्रकृति और पुरुष का यूनिटी के बारे में वहां डिस्कस होता है। उसी तरह अर्धनारीश्वर पूजा ये सब होता है। उसमें अर्धनारीश्वर माने इसे सिंबल ऑफ फेमिनिन एंड मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इसके बारे में इसका सिंबल होता है। उसी तरह ये शक्ति के महिला शक्ति का एक पर्याय है, इसके बारे में बहुत सारा उदाहरण भी हमारा इसमें होता है। एक कहानी तमिल में कंब रामायण, भारत के सभी भाषाओं में एक ही समय रामायण लिखा है भक्ति मूवमेंट के समय। कंब रामायण भी उसमें है। उसके उत्तर रामायण में एक सहस्रमुख रावण ऐसा एक असुर आया था। रावण को मारने के बाद पट्टाभिषेक, राम का पट्टाभिषेक हुआ। उसके बाद सहस्रमुख रावण ऐसा एक नया एक असुर आ गया, उसके सामना करने का एक ये राम को आया। लेकिन उनका एक वर मिला है, क्या है, कोई भी पुरुष को उसको हार नहीं सकते, ये वर मिला था। इसलिए राम उसके खिलाफ लड़ने के लिए गया, लेकिन भगवान श्री राम हार करके वापस आ गया। फिर किसको भेजेंगे, इसके बारे में डिस्कस किया। डिस्कस करते समय इसके सर्वदा योग्य व्यक्ति सीता है, ऐसा सीता देवी को भेजना है। क्यों भेजना है, उसका योग्यता क्या है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। उस समय एक सीता के एक बचपन में एक कहानी बताया, जब त्रयंबकम ऐसा एक धनुष उनके घर में जनक, उनके पिताजी जनक के
राजधानी में रखा था। एक बार जब जनक ने उसको देखा था, देखते समय सीधा बच्ची है, उस समय उसको उड़ाकर खेलते हैं। तो जनक को एकदम एकदम कुछ चिंता अपने मन में पैदा हुआ। क्या है चिंता? सीधा स्वयं त्रयंग इतना बड़ा एक चीज मनुष्य को उठा नहीं सकते, उसको बहुत आसानी से उठाया। तो उनका पति कम से कम उसको उठाना है, उसको शर भेजने के कैपेसिटी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने वो सीधा स्वयंवर में उसके बारे में किया। ये मुद्दा उस समय डिस्कशन में आ गया, वो याद दिलाकर सीधा सबसे इसके लिए सहस्त्रमुख रावण के लड़ाई के लिए सीधा जाना है, सीधा जाके उनको मार डाला। ऐसा एक कहानी कंब रामायण में होता है। इसलिए सीधा का ये शक्ति के बारे में उसमें होता है। उसी तरह बहुत सारा ये होता है। भारत में भी देवी पूजा, विजयदशमी, नवरात्रि ये सारा होते समय आयुध पूजा भी होता है। नवरात्रि पूरा महिलाओं का एक त्योहार है, वहां आयुध पूजा के लिए वो भी सेलेक्ट किया है ऐसा। इसलिए और हमारे पुराणों में बहुत सारा एग्जाम्पल्स मिलता है जहां पुरुष लोग हार जाता है तो महिला जाके उस असुर को मार डाला है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी हमको इसमें मिलता है। उसी तरह माताओं के बहुत कहानी मिलता है जो बहुत ब्रेव मदर्स है और आइडियस्ट भी है। ऐसा लोग है जैसे पार्वती के बारे में बोलते हैं, जो आइडियलिज्म कैसे बच्चों के मन में पैदा करते हैं। अब हम सब ने सुना हो मातृवत परदारेषु, सभी अन्य पत्नियों को मातृ जैसे मानना है। ये एक हमारा भारत का एक संस्कृति का हिस्सा है, मातृवत परदारेषु। छत्रपति शिवजी के इसमें भी ऐसा उदाहरण सुना है। ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है कि पुराण में पार्वती के बच्चा था सुब्रमण्यन कुमार। कुमार जब खेलते समय वो धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत नॉटी थे, इसलिए बाकी देवताओं को भी थोड़ा हरास करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पार्वती के, छोटा बच्चा है, तो उन्होंने पार्वती के सामने आके कंप्लेंट शिकायत कर दिया, अपने बच्चा ऐसा हमको बहुत नुकसान देते हैं, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करना है। तो पार्वती ने बच्चे को बुलाया और मेरे को थोड़ा टच करके इन सबको देखना है। जो पार्वती के वो टच करके देखते समय सभी देवियों देवी थे, सब अपना मादा जैसे देखा, मादा के रूप में सबको देखा। तो उसी समय से होकर सब लोग मादा जैसे है, ऐसा माधुरवत परदारेषु वो संकल्प उस समय पार्वती ने सुब्रमण्य को पहली बार बताया था। अभी देख लीजिए बहुत सारा कहानियां ऐसा होता है। जैसे कुंती पांडवों का माता है। एक बार बग एक गांव में रहते समय एक असुर आया था, सबको खाते हैं ऐसा असुर है बग। तो उससे गांव को मुक्त करने के लिए अपने बेटा भीम को भेजा, स्वयं भीम को भेजने के लिए ऐसा हिम्मत उन्होंने प्रकट किया। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के बारे में माता जी के और श्री कृष्ण के रिश्ता कैसा है, प्रसिद्ध है। मातृ हस्ते न भोजनम, ये बहुत प्रसिद्ध है। बच्चा और माता के बीच में कितना रिश्ता के बारे में, मातृ हस्ते न भोजनम, माता के हाथों से ही भोजन मिलना है, सबसे बड़ा एक इसे रूप में होता है। उसी तरह ऋग्वेद कालखंड से होकर बहुत सैनिक लोग, महिला लोग थे भारत में ऋग्वेद में। जैसे वध्रिमती ऐसा एक सैनिक है, उनका हाथ काट गया, इसलिए अश्विनी देवों को वो प्रार्थना करते हैं, अश्विनी देव आके आर्टिफिशियल लिम्ब उनको देते हैं। वध्रिमती को आर्टिफिशियल हैंड उन्होंने बनाया। उसी तरह विषपला ऐसा एक बहुत बड़ा एक सैनिक थे, महिला है, उसका एक पैर काट गया, वहां भी अश्विनी देवता आके उनको एक आर्टिफिशियल लेग देते हैं। उसी तरह एक मुदगलानी ऐसा एक रथकार है, वो इंद्र का
रथ चलाने वाले ड्राइवर था। वो भी ये युद्ध के रंग में वो गया था। उसको इंद्रसेना ये भी बोलते हैं। बाद में इंद्रसेना का नाम में वो माना, उनको बोलते हैं। ऐसा बहुत ब्रेव एंड आइडियलिस्ट लोगों का बहुत कहानियां हम सुनते हैं। वर्तमान में भी कई महान लोगों का जीवन में प्रेरणा के रूप में माताजी होता है। जैसे शिवजी, शिवजी के माताजी का प्रेरणा के कारण अच्छा एक वीर और आइडियलिस्ट एक पुत्र हुआ था। महात्मा गांधी जी भी अपना माताजी का प्रभाव कितना है बताता है। स्वामी विवेकानंद, ऐसा कई लोग अपने माताजी के प्रभाव के कारण एक अच्छा महान रूप में बनाया है। ऐसा कहानी मिलता है। अभी महिलाओं को रेस्पेक्ट करना है और महिलाओं को पूजा करना। ये महिलाओं को पूजा करने की ये परंपरा कहाँ से शुरू हुआ है? वो विष्णु ने पहली बार महिला का पूजा, अपना पत्नी की पूजा किया है। विष्णु ने लक्ष्मी का पूजा करके उन्होंने ये महिला, ये देवी पूजा उन्होंने शुरू किया है। महाभारत में एक दो चैप्टर्स, अजीब चैप्टर्स है। एक चैप्टर का नाम है स्त्री दूषणम, दूसरा चैप्टर का ये है स्त्री प्रशंसा। ये दो चैप्टर्स होता है। नारद को पूछा है आपको महिलाओं के बारे में क्या राय है? उन्होंने बताया, उसी समय के वर्तमान में ये डिबेटेड बात है। कई लोग बोलते हैं स्त्री ठीक नहीं, कई लोग प्रशंसा करते हैं। ऐसा दोनों विषय में बताता हूँ, इसलिए उन्होंने स्त्री प्रशंसा के बारे में एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर उन्होंने बताया। स्त्री दूषणम, ये छोटा चैप्टर उन्होंने बताया। स्त्री प्रशंसा में आता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, बाद में मनुस्मृति में एक श्लोक के रूप में प्रसिद्ध है। वो महाभारत में भी है। उसी तरह मनुस्मृति में दूसरा है न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हति, वो मनुस्मृति में, वो भी ये स्त्री दूषण में उस चैप्टर में वो भी आता है। ऐसा महाभारत में भी ये दोनों श्लोक हमको मिलता है। इसी तरह भारत में विश्व में सबसे ज्यादा एक मैट्रियार्कल कल्चर वो डेवलप हुआ है। मैट्रियार्कल कल्चर, मैट्रियार्कल कल्चर में मैट्रियार्कल एस्थेटिक, इस मातृत्व सौंदर्य शास्त्र वो भी विकसित हुआ है। जैसे कई जगह आप देखते हैं, जैसे केरल में मुडियेट होता है, सबसे बड़ा एक आर्ट फॉर्म है जहाँ पार्टिसिपेटरी रोल भी होता है। जो स्पेक्टेटर्स जो इसको देखने के लिए आते हैं वो भी उसमें भाग लेते हैं। मुडियेट वो काली का काली देवी का एक स्टोरी होता है, इसमें दारिक का वध उसका स्टोरी में मुडियेट होता है। उसी तरह कई तरह की डांस फॉर्म्स, इसलिए मैट्रियार्कल एस्थेटिक पूरे देश में बहुत होता है। इसके बारे में भी गहरा में स्टडी होना चाहिए। दूसरा, नेमिंग के बारे में, नाम देने में भी एक मैट्रियार्कल सिस्टम भारत में डेवलप हुआ है। जैसे इसको वेस्ट में तुलना करते तो वेस्ट में नाम देते समय महिलाओं को अपना स्वयं एक आइडेंटिटी नहीं होता है, इसलिए मेरी का नाम को पति के रूप में माना जाए। मिसिस जोसेफ यही बोलते हैं उनका, मेरी के बारे में बोलते हैं मेरी, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो पति जोसेफ है इसलिए मिसिस जोसेफ ऐसा बोलते हैं। ये सिस्टम भारत में भी आया है, मिसिस जोसेफ। और मेरी के नाम पर मेरी जोसेफ ये भी बोलता है, ये महिलाओं का नाम है, मेरी का नाम मेरी जोसेफ। ऐसा भारत में भी ये सिस्टम बहुत प्रचलित है। लेकिन पुरातन भारत में दूसरा एक सिस्टम था, एकदम उल्टा। पुरुष अपना पत्नी के नाम पर ही हम देखते हैं। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण कौन है? एक कृष्ण का नाम है, राधा समेत कृष्ण। वेस्टर्न मैपडाउन में राधा कृष्ण माने राधा वाइफ ऑफ कृष्ण होता है, ये नहीं, भारत में राधा कृष्ण। उमापति, उमा के पति के रूप में भगवान शिव का नाम है। श्रीपति, श्री के पति के रूप में विष्णु का नाम है। माँ धवन, माँ का धवन, ये भी विष्णु का नाम है। सीतारामन, सीता
वाइफ ऑफ रामन नहीं है। राम सीता का हस्बैंड के रूप में रामन का नाम है। ऐसा एक मैट्रियार्कियल नेमिंग, ये भी भारत में ये भी सब पढ़ने लायक एक चीज है। उसी तरह माता जी के नाम पर बच्चों को का पहचान ये भी भारत में है। जैसे अश्विनी देवदास, वो भी अश्विनी, अश्विन माने एक मादा के बच्चे थे। उसी तरह ऐदरा, ऐसा एक ऋषि थे, उसकी बच्चा है ऋषि ऐदरेय, बहुत प्रसिद्ध है। ऋग्वेद से होकर बहुत उपनिषद में भी उनका रेफरेंस आता है। वो सब ऐदरा, ऐसा एक महिला के बच्चा है ऋषि ऐदरेय। इसलिए मादा के नाम पर जैसे पांडवों को नाम क्या है, कौंतेय, कुंती के पुत्र कौंतेय, ऐसा आता है। ये भी सिस्टम मैट्रियार्कल नेमिंग में आता है। फिर अभी दलित मूवमेंट भी, फेमिनिज्म भी यूज करते हैं। भारत में एक दलित विमेन मूवमेंट भी बहुत हुआ है। जैसे ऐदरे का माता जी के बारे में होता है। कई तरफ की दलित लोग, उनके माता जी दलित लोग थे। जैसे प्रसिद्ध लोग व्यास, उसका माता जी मत्स्यगंधी, और वशिष्ठ का पत्नी अक्षमाला, ये दलित थे। एक बहुत प्रसिद्ध रामायण का ऋषिका है, ऋषिक है शबरी। शबरी के जो आश्रम में राम गए थे वो भी दलित था। उसी तरह मंदाबाला ऐसा ऋषि है, उसकी पत्नी सारंगी। उसी तरह वायरुचि, विक्रमादित्य के राजधानी में प्रसिद्ध एक चिंतक थे, उसका पत्नी भी एक दलित थी। ऐसा कई तरह की दलितों का है। और जब तमिल में तमिल इतिहास में आते समय मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी पीरियड इज संघ पीरियड, संघम लिटरेचर। वहां भी करीब 200 दलित राइटर्स, महिला राइटर्स होता है, वो भी पढ़ने लायक है। सबका लिस्ट अभी मिलते हैं हमारे सामने। तो ऐसा 200 दलित पोइट्स होता है। जैसे अव्वयार, इलवेनी, वेन्निकुयति, ये सारा एक जाति का नाम, सबसे एक दलित जाति का नाम है। ऐसा कई तरफ की 200 लोगों का नाम भी हम बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारा महिला राइटर्स संगम पीरियड में होता है। करीब 4000 के ऊपर राइटर्स का नाम संगम पीरियड में मिलता है। उसमें बहुत सारे लोग महिला राइटर्स होता है। उसी तरह स्पिरिचुअल सर्कल में जानाबी, नामदेव का शिष्य है जानाबाई, फिर सोयराबाई, निर्मला, बहनाबाई, ऐसा तुकाराम का शिष्य, ऐसा कई लोग के हम सुना है। इसलिए एक दलित महिलाओं को भी बहुत सामान्य स्थान भारत के समाज में पहले हुआ था। फिर हम वेस्टर्न लोग परिवार के बारे में बहुत डिस्कस किया था, परिवार को रिजेक्ट करना ऐसा हुआ। लेकिन भारत का संस्कृति का सबसे बड़ा एक चीज है, फैमिली को एक मॉडल के रूप में मानते हैं। जैसे विदेव जब भीष्म को पूछा था एक देश कैसे शासन करना है, ऐसा एक सवाल हुआ, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लेकिन भीष्म ने एक आसानी से, एक सिंपल ललित रूप में उन्होंने बताया, पितेव पासी धर्मचार्य, रूल लाइक ए फादर। जैसे परिवार को पिताजी रूल करते हैं, उसको करते हैं। इसके कारण भारत की सारी सामाजिक संस्था, इंस्टीट्यूशन, दे हैव अडॉप्टेड द फैमिली मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, हम राष्ट्र को भारत माता इसके रूप में माता कॉन्सेप्ट होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को उद्योग परिवार ऐसा बोलते हैं। भूमि को मदर अर्थ, पृथ्वी मातरम, ये बोलता है। उसी तरह सभी महिलाओं को मातृवत परदारेशु, माता जी जैसे मानना है, ये देखा है। उसी तरह पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब फैमिली कंसेप्ट हमने, हमारा फॉरेन रिलेशन भी हमने लाया है। इससे सारी संस्था परिवार के रूप में मॉडल किया है। अभी जब एजुकेशन के बारे में सोचते समय, वेस्ट में पहली बार एजुकेशन बारे में
महिलाओं को एजुकेशन देना है, ऐसा एक प्रोमिनेंट डिमांड आया है 1792 में। वहां वॉल्स्टन क्राफ्ट ऐसा एक राइटर ने ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ऐसा एक किताब लिखा है। उन्होंने 1792 में पहली बार वेस्ट में एजुकेशन के बारे में बताया। लेकिन भारत में आप देख लीजिए, ऋग्वेद के समय से होकर अभी तक महिलाओं के एजुकेशन के बारे में बहुत होता है। जैसे मैंने मालती माधव के बारे में बताया, एजुकेशन द गर्ल चाइल्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा उन्होंने बताया। उसी तरह मंडन मिश्रा और आदि शंकराचार्य के बीच में मीडिएटर को बीच रूप में एक स्कॉलर चाहिए, तो मंडन मिश्र का पत्नी उभय भारती वो मीडिएटर के रूप में काम किया था। उसी तरह जनक का राजधानी में ऋषि सुलभ वो जाकर उनसे डिबेट करते हैं। उन्होंने पहले बताया आत्मा इज जेंडर न्यूट्रल, वो उन्होंने वहां बोलता है आत्मा इज जनरल न्यूट्रल। ऐसे जनरल के बारे में डिस्कशन सुलभा और जनक के डिस्कशन में महाभारत में हम देखते हैं। उसी तरह गार्गी और जनक के बीच में भी ऐसा डिस्कशन होता है। मैत्रेयी अपने पति याज्ञवल्क्य के साथ इसके बारे में चर्चा होते हैं। स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, इसके बारे में डिस्कशन मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच में होता है। उसी तरह के वैल्यू एजुकेशन पहले थे हमारे, जब पुराने इतिहास में होते समय हर पुरुष और महिला अपना एजुकेशन में 64 आर्ट्स पढ़ना है। जैसे ड्राइंग होना चाहिए, ऐसा कई तरह की ड्राइंग, पेंटिंग, पोएम रीडिंग, ऐसा 64 आर्ट्स बिल्कुल पढ़ना है। उसके बाद ये हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में होम साइंस बोलते हैं, वो सारा इसमें किचन वर्क ये सब आता है। ऐसा 64 आर्ट्स पढ़ना है। उसी तरह अभी जो उस समय जो रोल मॉडल से सारा सीधा गार्गी अनसुईया ऐसा बहुत सारा रोल मॉडल्स महिलाओं के बीच में होते हैं। अभी तो फिलिप स्टार जैसे लोग हो गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी हो रहा है। इसलिए एक वैल्यू सिस्टम, reinstatement of value system is very essential in our society. धर्म संस्थापनम, ये भगवत गीता में भी बताया है, भगवान का एक बहुत बड़ा भूमिका है धर्म संस्थापनम, वैल्यू रीइंस्टेटमेंट वो अभी होना चाहिए। उसी तरह बॉयज के बीच में भी महिलाओं के बारे में, गर्ल्स के बारे में एक परसेप्शन, एक पॉजिटिव परसेप्शन डेवलप करना है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी तरह एक डिस्कशन फेमिनिस्ट के बीच में भारत में होता है, क्या है, वुमेन राइटिंग्स। वुमेन राइटिंग्स दो तरफ की होता है, एक तो महिलाओं के बारे में महिला लिखते हैं, दूसरा महिलाओं के बारे में बाकी पुरुष भी लिखते हैं। सो बाय एंड फॉर वुमेन, ऐसा दो कैटेगरीज में होता है वुमेन राइटिंग। जैसे हमने संघा पीरियड में कई महिलाओं के बारे में मैंने बताया, वो है। भारत में जेंडर के बारे में बताया है, गॉड इज सेक्सलेस, देयर इज आत्मा इज जेंडर न्यूट्रल, देयर इज नो सेक्स डिविजन इन आत्मा, सुप्रीम बीइंग इज जेंडर न्यूट्रल। ऋग्वेद में बोलते हैं भगवान को वो पिताजी भी है माताजी भी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस होता है। केवल आत्मा जब बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन होता है, तब पुरुष और महिला के रूप में वो सेपरेट हो जाता है। इसलिए जेंडर को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारा होता है। एक तो जेंडर डिफरेंस मनुष्य के मन में कैसे होता है, ये माया के कारण होता है, माया के कारण ये जेंडर डिफरेंस होता है। इसलिए ये डेल्यूशन, माया, इसके कारण वो अज्ञानियों के मन में यह ज्यादा होता है। इसलिए ज्ञान, बाय नॉलेज दिस कैन बी, जेंडर कैन बी ट्रांसेंडेड। इसी तरह इसलिए स्त्री पुरुष भेदभाव को ट्रांसफर करना ये उन्होंने बताया। तो स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे ऊपर जाते समय ये होता है। जेंडर ट्रांसफर करने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पुराण में बहुत मिलता है। जैसे कालिदास शिव के बारे में, शिव की क्वालिटीज के बारे में बताता है। उसमें एक क्वालिटी क्या है, अच्छी लोगों के मन में पुरुष और
महिला, ये भेदभाव नहीं होता है, ये वो बोलता है। उसी तरह बुद्धिस्ट लोगों के बीच में ही जब एक व्यक्ति को जेंडर डिफरेंस पार होता है तब वो मोक्ष के लिए योग्य होता है, ये बुद्धिस्ट सिस्टम है। उसी तरह गुरु तोतापुरी परम श्री राम परमहंस को बताया था, ब्रह्मज्ञानी को कोई स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। पुराण में स्वामी विवेकानंद सीता के बारे में बताता है। एक लेडी ऋषि के आश्रम में वो गया, उस समय लेडी अनुग्रह किया, आप हमेशा पुरुष के आदेश के अनुसार आप जीवन बनाना, ऐसा बोला। तो तुरंत सीता ने बताया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकते, पुरुष और महिला इक्वली परस्पर आदेश देके परस्पर अपना धर्म पालन करके ही जीवन करना, ऐसा ऋषि के वो आशीर्वाद को थोड़ा करेक्ट करते हैं। ये उदाहरण स्वामी विवेकानंद सीता के बारे में देते हैं। उसी तरह ऋषि के बारे में एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, कैसे जेंडर पार कर सकते। ऋषि शुग और व्यास एक जंगल से जाते थे। ऋषि शुग तो पहला गया, पीछे कुछ दूर में व्यासा भी उनको फॉलो करते थे। उस समय अप्सरस कुछ लोग एक इसमें पौंड में, तालाब में स्नान करते थे। शुग को देखकर वो नमस्कार कर दिया, फिर वो गया, पीछे व्यास आ गया, व्यास को देखने का जल्दी उन्होंने अपना कपड़ा पहन लिया। तो व्यास को गुस्सा आ गया, उन्होंने बताया कि नौजवान शुग को देखकर आपने केवल नमस्कार कर दिया, लेकिन एक बूढ़ा मेरे को देखकर आप क्यों कपड़ा पहन लिया। तो उन्होंने बताया, शुग स्त्री पुरुष भेदभाव वो पार किया है, इसलिए उनको नमस्कार कर दिया, लेकिन आपका मन में वो भेदभाव अभी भी है। इसलिए जेंडर के बारे में एक अच्छा डिस्टिंक्शन महाभारत में इस कहानी में हमको मिलता है। उसी तरह विष्णु पुराण में एक होता है, विष्णु पुराण में एक ब्राह्मण को बच्चा नहीं, इसलिए ब्राह्मण और पत्नी तपस करते हैं। अंत में विष्णु प्रत्यक्ष होता है। विष्णु होता है, ठीक है आपको बच्चा होगा, आपको क्या बच्चा चाहिए या बच्ची चाहिए, ये विष्णु ने पूछा। तो ब्राह्मण का उसका उत्तर होता है, ब्राह्मण ने बताया, बच्चा और बच्ची में क्या फर्क है, बच्चा माने वो विष्णु है, बच्ची माने लक्ष्मी है हमारे लिए, तो जो भी करिए। ये भी हमारे भारत का एक संस्कृति का हिस्सा के रूप में हम मानना है। ऐसा बहुत सारा विषय है, समय के सीमा के कारण में नहीं बोलना चाहता है। उसी तरह कहानियां में ऐसा भी है जहां कुछ लोग दो पुरुषों का जीवन भी बिताया है, महिला का जीवन भी बिताया है। ऐसा कहानी भी देवी भागवत में नारद माया के कारण ऐसा दोनों करते हैं और दोनों का अनुभव लेते हैं। उसी तरह योग वासिष्ठ में एक राजा के बारे में, वो भी उनको भी दोनों अनुभव मिला था। महाभारत में अनुशासन पर्वों में किंग भंगस्वानन ऐसा एक महाराजा राजा थे, उनको भी ऐसा स्त्री के रूप में और पुरुष के रूप में दोनों अनुभव उनको भी मिला है, ऐसा होता है। अंत में एक नया एक ये भी सोचना है, वो है जेंडर जूरिस्प्रूडेंस। भारत में एक जेंडर जूरिस्प्रूडेंस बहुत विकसित किया है। वेस्ट में ऐसा अभी तक जेंडर जूरिस्प्रूडेंस अभी तक विकसित हुआ नहीं, वो पुरुषों और महिलाओं के तुल्यता के बारे में होता है। भारत में जेंडर जूरिस्प्रूडेंस का विशेषता क्या है, अमेरिका में और इंग्लैंड में पहले शादी के बाद देयर इज ए सिविल डेथ हैपेंस टू द विमेन। सिविल डेथ माना क्या है, शादी के बाद तुरंत उनका प्रॉपर्टी राइट्स खत्म होता है, उनका सारी प्रॉपर्टी हस्बैंड का प्रॉपर्टी बन जाता है, यही होता है। इसलिए इंग्लैंड में वो लॉ में परिवर्तन, कानून में परिवर्तन हुआ है 1886 में, एक कानून के रूप में परिवर्तन। उसे 1886 तक उनको कोई, महिलाओं को कोई प्रॉपर्टी नहीं राइट्स शादी के बाद हुआ नहीं। लेकिन भारत में क्या है, भारत में दो तरफ की प्रॉपर्टी कानूनी सुविधा होता है। एक तो महिलाओं को सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा प्रावधान हमारा धर्मशास्त्रों में होता है। बहुत सारे देवता
महापुरुष, उसको जाना जाता है महिलाओं को संरक्षक के रूप में। जैसे अश्विनी देवता ऋग्वेद में कई बार महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए उनका प्रत्यक्ष हो जाता है। उसी में भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा महिलाओं को उन्होंने रेस्क्यू सेव किया है। श्री राम भी ऐसा किया है, अपना पत्नी सहित कई लोगों को सेव किया है। हमारे धर्मशास्त्रों में दो तरफ की पनिशमेंट होता है। एक तो महिलाओं को जो कोई हैरास करते तो उनको हेवी पनिशमेंट होता है, लेकिन महिला जब कुछ गलती करते हैं उनका पनिशमेंट थोड़ा सावधानी से करना है। कभी भी जितना भी उन्होंने ग्रेव मिस्टेक हो सकते उनको घर से निकालना नहीं, ऐसा व्यक्ति रूप से बताया है। फिर वुमेन्स प्रॉपर्टी के बारे में, स्त्री धना, इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट इन इंडियन लीगल पार्लेंस। यूनिक माने स्त्री धना मान्स इट्स ए एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ विमेन। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली वो क्लैरिफाई किया, ये केवल महिलाओं का है। उसमें हमारा धर्मशास्त्र बताता है जो भी उनको टच भी करते हैं उनको पनिश करना है, ऐसा उन्होंने बताया। चाहे वो पिताजी है या ब्रदर है, ऐसा जो भी हो ऐसा करना है। ऋग्वेद में विश्वामित्र बोलते हैं एक जगह सिस्टर का प्रॉपर्टी चुराने के लिए भाई प्रयास करते हैं, तो विश्वामित्र ने ऑब्जेक्ट करते हैं, नहीं आपको कोई अधिकार नहीं, ऐसा उन्होंने बताता है। ऐसा कई, और याज्ञवल्क्य बोलते हैं वाइफ एंड हस्बैंड हैज इक्वल राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी, वो बोलते हैं। मनु बोलते हैं डॉटर एंड सन्स हैव इक्वल प्रॉपर्टी। बृहस्पति इसका न्याय बोलते हैं, क्यों हस्बैंड एंड वाइफ इक्वल प्रॉपर्टी राइट होता है, क्यों सन एंड डॉटर्स इक्वल राइट्स होता है, उनके बारे में वो बोलता है दोनों में एक ही आत्मा होता है, इसलिए एक ही आत्मा होने के कारण दोनों का प्रॉपर्टी राइट्स भी एक ही होना है, ऐसा बृहस्पति ने उसका लॉजिक रैशनल बताया है। उसी तरह बहुत सारे लिबरेटेड वीमेन के बारे में भी बताता है। अभी एक चीज के बारे में हम डिस्कस करना है, इतना महत्वपूर्ण स्थान महिलाओं को होने पर भी क्यों महिलाओं के स्टेटस में डिटीरियोरेशन भारत के इतिहास में हुआ है, महिलाओं का फॉल कैसे हुआ, ये भी होता है। इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन कई लोगों ने बताया, अच्छा डिस्कशन मिलता है। डॉक्टर शकुंतला देवी ने उसके बारे में बताया, उन्होंने बताया इस्लामिक अग्रेशन के समय वो हुआ है, विडो का ज्यादा हुआ है, विडोज का संख्या ज्यादा हुआ, इसलिए विडो मैरिज नहीं होना करना है, ऐसा उन्होंने बताया। जल्दी बच्चियों का मैरिज शादी करना है, ये भी इस्लामिक अग्रेशन के समय हुआ है। सदी, इस्लामिक अग्रेसर से बचने के लिए सदी अनुष्ठान व्यापक रूप से कई जगह आया था। डावरी, ये भी ज्यादा हो गया क्योंकि पुरुषों का संख्या कम हो गया, महिलाओं का संख्या ज्यादा हो गया, तो पुरुषों को पैसा देना, ये डावरी भी हो गया। पुरुषों ज्यादा महिलाओं को शादी करना, पुरुषों के युद्ध के कारण पुरुषों का संख्या कम होने के कारण वो भी हुआ। फिर महिलाओं का एजुकेशन देने की, चाइल्ड मैरिज होता है इसलिए एजुकेशन की मौका भी मिलता है, इसलिए एजुकेशन भी कम हो गया। ये सारा इस्लामिक एग्रेशन के कारण हो गया, एक कारण। दूसरा कारण है बौद्ध पीरियड में बुद्ध तंत्र, जादगा टेल्स, इसमें सब जगह महिलाओं के थोड़ा डिग्रेड करने वाले कई कहानियां होता है। एक कहानी है, एक असुर था, उनका पत्नी के बारे में हमेशा डाउट ये हुआ था, इसलिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास कर दिया, इसलिए वो अंत में उन्होंने क्या किया, पत्नी को अपने पेड़ के अंदर उन्होंने रखा, तो किसी को वो चीटिंग नहीं करेंगे, फिर भी वहां बैठ के वो चीट कर दिया, ऐसा एक कहानी उसमें होता है। ऐसा कई कहानियां जादगा टेल्स में बौद्ध तंत्र में है, सब होता है। तीसरा है हमारे भी धर्मशास्त्र में, जो लेटर धर्मशास्त्र मानता है उसमें भी, जैसे आपस्तंभ का धर्मशास्त्र से होकर ये महिलाओं को स्थिति में डिटीरियोरेशन का कुछ रूल्स बनना शुरू हो गया, ऐसा कुछ मुद्दे उन्होंने बताया है। इसलिए कंक्लूड करके मैं बताता हूं, अभी स्वामी जी ने कैसे वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं का स्थिति कैसे विकसित करते उनके बारे में उन्होंने बताया। आप केवल महिलाओं को एजुकेट कर दिए,
एजुकेशन उनको सशक्तिकरण का सबसे बड़ा चीज है, एजुकेट करना है। तो महिलाओं अपना मुद्दों वो स्वयं सोल्व करेंगे। ये स्वामी जी का प्रसिद्ध है एक सुझाव। एजुकेट करना, एजुकेट से उसका एम्पावरमेंट होता है, फिर वो अपना सारे मामला मुद्दा सब वो स्वयं सोल्व करेंगे, ऐसा है। इसलिए ऐसा एक होना चाहिए, एक अच्छा महिला मूवमेंट भी देश में होना चाहिए, विमेन लीडरशिप भी समाज में बिल्डअप करना है। ऐसा एक करने के लिए हमारे भारत की महिलाओं का दृष्टि, ये सब के बारे में एक अच्छा अध्ययन भी हमारे बीच में होना है। इतने भी कहते हुए मेरा ये विषय मैं इधर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साजी नारायण जी। अभी क्वेश्चन आंसर का समय है। जिस किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं पूछ सकते हैं। हाँ, अनुश्री जी आप पूछ सकती है। हाँ, नमस्कार। मैंने अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डाला हुआ है, मैं वहीं पढ़ूं या वो अंग्रेजी में तो उसको हिंदी में पूछूं? पढ़िए एक बार। अब आप वो पूछ लीजिए। जी, नमस्ते साजी नारायण जी। जी जी जी। ने बताया कि जो मार्क्सिस्ट नैरेटिव है उसमें अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि उनको एक क्लास हायरार्की बरकरार रखनी है, तो इसलिए उसमें वो मेल फीमेल एंगल लाना नहीं चाहते, जिसके चलते फेमिनिज्म मूवमेंट जो है वो मार्क्सिज्म से अलग ऐसा डेवलप हुआ। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब भी हम भारत में देखते हैं, मेरे अनुभव से ये मुझे दिखा कि जो रेडिकल लेफ्टिस्ट आर्ग्यूमेंट होती है और जो रेडिकल फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट होती है वो मानो एक दूसरे के साथ चलते हैं और उनकी एक साझेदारी भी होती है। फिर जितनी भी हमारी सांस्कृतिक मूल्य हो या कुछ परंपराएं हो या कुटुंबक व्यवस्था हो या समाज व्यवस्था हो, उसके ऊपर एक ही फ्रेमवर्क के अंतर्गत आक्रमण किया जाता है। तो जब मार्क्सिज्म में ही मेल फीमेल वाला एंगल शुरू के मार्क्सिस्ट नहीं लाना चाहते थे, तो ये बदलाव आया कैसे और कैसे ये लोग एक तरीके से एक साथ आके पूरे भारतीय मूल्यों के एक प्रकार से विरोध में खड़े रह जाते हैं? ये इस फिनोमेना का कोई स्पष्टीकरण है जिसे हम समझ सकते हैं? जी जी धन्यवाद। जी जी, आपने अच्छा सवाल उठाया। अभी कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड और लेफ्टिस्ट मूवमेंट का स्टैंड दोनों अलग है। कम्युनिस्ट पार्टी अपने भूमिका में मार्क्सिस्ट का या मार्क्सियन वो थिंकर्स के लाइन पकड़ के केवल क्लास कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम काम करना है, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं काम करना, उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन लेफ्टिस्ट मूवमेंट क्या है? लेफ्टिस्ट मूवमेंट में फेमिनिज्म और विमेन्स लिबरेशन का दोनों मुद्दा मिक्स करके वो बताता है। इसलिए हम जब हमको जो सामना करना पड़ता है वहां फेमिनिज्म और विमेन्स लिबरेशन, इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। अभी जो डिस्कोर्स देश में चलते हैं और ग्लोबल लेवल में भी, ये दोनों जैसे ये कई फेमिनिस्ट राइटर्स के किताब पढ़ते समय वहां भी कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट व्यूज, लेफ्टिस्ट लिबरल व्यूज जो हम कहते हैं उससे और फेमिनिज्म को हम सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों मिक्सअप करते हैं। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टीज जो फॉलो करते हैं उनका, जब हम कम्युनिस्ट पार्टी का लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी का महिलाओं का महिला संघ ऐसा एक संगठन है, उनका ऑफिशियल लिटरेचर आप पढ़ते समय ये स्पष्ट रूप से कहा है, महिला संगठन का काम क्लास मूवमेंट चलाने के लिए है, लिबरेशन के लिए नहीं है। लेकिन लेफ्ट मूवमेंट वो अप्रोच अडॉप्ट किया नहीं, वो भारत की जो भी मूल्य होता है उसको विरोध करना है, वो उनका मुख्य एजेंडा है। इसके लिए 3 लोग अभी मिलाकर काम करते हैं, एक तो लेफ्टिस्ट लोग, दूसरा इवेंजलिस्ट, तीसरा जिहादी। ये 3 लोग जो अर्बन नक्सल सब इसमें आता है, वो सब कम्युनिस्ट पार्टी के से लड़ते हैं। वो बहुत सारे लेफ्टिस्ट लोग अलग अलग सोचते हैं, लेकिन लेफ्टिस्ट लिबरल अर्बन नक्सल जैसा कैटेगरी होता है, वो इवेंजलिस्ट और जिहादी लोग वो एकदम विरोधी लोग है। लेकिन भारत की संस्कृति को विरोध करने के लिए ये दोनों मिलाकर अभी देश में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। प्रीति गोयल जी आप पूछना चाहती है?
मैं जेंडर जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा मैं कुछ और नहीं समझ पाई कि क्या है। जेंडर जूरिस्प्रूडेंस मीन्स महिलाओं के लीगल क्वेश्चंस के बारे में जो आता है वो जेंडर जूरिस्प्रूडेंस में आता है। जूरिस्प्रूडेंस मीन्स लीगल नॉलेज। इसलिए वो अभी मॉडर्न कई जगह इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कशन शुरू हुआ है, लेकिन भारत में बहुत पहले से एक जेंडर जूरिस्प्रूडेंस डेवलप किया है। महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार देते हुए कुछ जेंडर जूरिस्प्रूडेंस यह है। ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने पूरा विस्तारित रूप से बताया नहीं, लेकिन मुख्य रूप से एक महिलाओं का सुरक्षा के लिए क्या क्या कानून होना चाहिए। महिला सुरक्षा दोनों तरफ की है। उनको हरास करने के लिए करने वाले पुरुषों को कैसे उनको दंड देना है, ये एक बात है। महिला स्वयं को दंड देते समय क्या क्या गाइडलाइंस होना चाहिए, ये दोनों उसमें आता है। दूसरा है महिलाओं का प्रॉपर्टी रेस। उसका सेंटर पॉइंट है स्त्री धना। स्त्री धना मीन्स इट्स ए प्रॉपर्टी ओनली बिलोंगिंग टू द विमेन। ये पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा एक सोच नहीं है, इसलिए स्त्री धना कॉन्सेप्ट इट्स ए वेरी एक्सेलेंट कॉन्सेप्ट। एंड जेंडर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बहुत विस्तारित रूप से अभी वर्तमान में 2-3 सुप्रीम कोर्ट जज में भी आया है। अगर हम इस पे रिसर्च या कुछ करना चाहें तो कुछ गाइडेंस मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, कोई चिंता मत। बहुत सारा आप एक बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में देता हूँ, उसमें बहुत विस्तारित रूप से सारा डिस्कस किया है। अच्छा है। और किसी को कुछ पूछ? धन्यवाद। धन्यवाद साजी नारायण जी, आपने जी बहुत जी गहराई के साथ इस विषय के हर एक आयाम को स्पर्श किया है तथा उसका बहुत अच्छे से विवरण दिया है। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ तथा तकनीकी सपोर्ट के लिए इंडियन हेरिटेज सोसाइटी के अनंत आशुतोष जी को भी धन्यवाद देती हूँ। और आज का यह सेशन समाप्त हुआ है, ऐसे मैं यहाँ बताती हूँ। धन्यवाद।